अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू पोएम बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, क्योंकि मैं मौत के लिए न रुक सकी बाय इमली डिकिंसन। इन दिस पोएम इट इज टोल्ड at time of death 500 poems were written just on the topic of death. These poems are found from the home of Emily Dickinson. In this poem, the poetess tells us she is going to leave this world, and she is entering to the next world. She feels comfortable. She does not feel any mis problem in her mind. She had not paid for death. She gave up all responsibilities of life and works of her life, and she is ready to sit in the carriage of death. She says, "Welcome to death." When she sits in the carriage of death, there are three things in the carriage. Three occupants in the carriage. First of all, dead body. Second, death, and the third one, the departed, the soul of the departed poetess, and she feels comfortable in this carriage. पोएटस बताना चाहती है कि हर कोई मौत से डरता है, मौत को ये खुश आमदीद कहती है, ये अपनी तमाम चीज़ों को, जिंदगी की तमाम चीज़ों को रोक देती है, अपने तमाम वर्ष को रोक देती है, ख़त्म कर देती है। कहती है कि ज़िंदगी के अंदर जो कुछ मैंने करना था कर दिया, ये उनको तर्क कर देती है अपनी ड्यूटीज़ को, और मौत को खुश आमदीद कहती है, और मौत की बगी में बैठकर आखिरी सफ़र की तरफ रवाना होती है। ये अपने आप को बड़ा पुरसकून महसूस करती है, कहती है कि मौत मेरे लिए एक सुकून दे माहौल है। तसव्वुराती तौर पर ये अपने आप को इन ख्यालात के अंदर लेकर आती है। स्टूडेंट, ये थी पॉइंट। अब हम करते हैं इसके मेन पॉइंट्स ऑफ द पॉइंट डिस्कस। जर्नी, जर्नी टू इटर्निटी। The poetess is traveling from this world to the next, यानी इस दुनिया को छोड़कर अगली दुनिया की तरफ जा रही है। उस दुनिया को अब्दियत कहा जाता है, इटर्निटी कहा जाता है। ये अपने आप को ये महसूस करती है कि ये हैप्पी है। इसे नहीं पर पता होता कि इसके पास मौत ने कब आना है, बट Death himself comes to the poetess and informs her, and she is ready to give up all responsibilities of her life and to sit in the carriage of death. ये मौत के सफर को खुश आमदीद कहती है, बिल्कुल भी अपने अंदर खौफ महसूस नहीं करती। नेक्स्ट है death, a kind being. मौत जो है ये इसके लिए मेहरबान है, शफकत वाला सलूक करती है। She says welcome to death. She did not feel any problem in her mind. She says to herself, death is death. And death, when comes to her, she says welcome. She nothing feel any problem in her mind. She feels comfortable and does not afraid from death. That's right.
and travel of life. The poetess feels in her mind it is very good that death comes himself to her and informs her. The poetess says and tells us they passed by a school where children were playing at the time of recess period, and the second they passed by a cornfield, and the third one she says they passed a place where the sun was sitting in. There are three things have been described. First of all, there are three symbols. First of all, youth. First of all, school life means childhood. The second one, youth, and the last one, old age. बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये तीन चीजें इसके अंदर डिस्कस की गई हैं। जहां जहां से पोएट्स कहती है हम गुजर कर जाते हैं। पोएट्स कहती है, शायरा कहती है कि जब हम गुजर रहे होते हैं, हर बॉडी शिवर्ड ड्यू टू कोल्ड एंड शी वाज कवर्ड विथ थिन क्लोथ्स. She has a tippet on her body, but due to cold, she feels very cool. But her carriage stopped where the mound of earth. इसकी बग्गी जो है वहां जाकर रुकती है जहां पे जमीन का छज्जा सा बना हुआ है, जमीन उभरी हुई है, वहां जाकर इसकी बग्गी जो है स्टॉप हो जाती है, यानी इसकी मौत गाड़ी है वो वहां पे जाके रुक जाती है. लास्ट पे डेथ is the theme of the poem. That is the main theme of the poem, and it is the theme of the poem. How the poem arounds a death. The poetess herself says, "This is death, and I cannot stop her death because death himself very comfortable and courteous for the poetess." This is the explanation of the poem. बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन. Because I could not stop her death, क्योंकि मैं मौत के लिए ना रुक सकी. He kindly stopped for me. मौत जो थी वो मेरे लिए मेहरबानी के तौर पर रोकी. The carriage held but just ourselves. जो बग्गी थी वो मेरे लिए रुकी और उसने खुशामदीद कहा एंड इमोर्टैलिटी, और फिर इसके बाद मेरे लिए अब्दियत थी. लफानी दुनिया थी, छोड़कर मुझे चले जाना था. वो स्लोली ड्रोव, हम आस्ता आस्ता चलते गए, कुछ जल्दी नहीं थी. There was no any haste. He knew no haste. मौत कहती मेरे लिए कुछ जल्दी नहीं है. And I had got away. मैंने भी कुछ ऐसा ही किया. And my labor and my leisure too. मेरा काम, मेरी फुर्सत, मेरे फुर्सत के लम्हात, सब कुछ मेरा मौत के लिए कुर्बान था. For its security, सब कुछ इसकी तहजीब के लिए था. नेक्स्ट स्टैंजा है, we passed school, हम स्कूल के पास से गुजरे. The children stopped, जहां बच्चे खेल रहे थे. At recess in the wing, जब स्कूल के अंदर घंटी बजी तो उनको तफरीह के लिए उनको जब टाइम मिला रिसेस के लिए, तो बच्चे वहां खेल रहे थे. We passed the field of grazing grain, हम पकी हुई फसल के पास से गुजरे. फर्स्ट पॉइंट इज क्या, स्कूल, हम स्कूल के पास से गुजरे मीन चाइल्डहुड. फिर कहते हैं we passed the field of grazing grain, हम पकी हुई फसल के पास से गुजरे. That is symbol of a youth. We passed the setting sun, हम फिर वहां से गुजरे जहां पे सूरज गुरूब हो रहा था, यानी सूरज जा रहा था. That is the symbol of a old age. Or rather we passed us the dew quivering and chill. फिर हम गुजरते चले गए, मौत हमें लेकर चलती बसी. वहां शबनम के कतरे गिर रहे थे जैसे सर्दी हो. But only gossamer, my God,
सिर्फ मेरा जो दुपट्टा था, जो मेरा मफलर था, वो हिल रहा था। माई टिप्पट ओनली ट्यूड, मेरा जो ब्रीक कपड़ा था वो मुझे यूँ लगता था जैसे बिल्कुल बुसीदा हो गया हो, खराब हो गया हो और मुझे उसमें सर्दी लग रही है। We passed before a house, हमें घर के पास से रुके, that seemed a swelling of the ground, जहाँ जमीन उभरी हुई दिखाई देती थी। The roof was scarcely visible, वहाँ छत उसकी बहुत मुश्किल दिखाई देती थी। The cornice in the ground, जमीन का छज्जा सा बना हुआ था। Since then 20 centuries and yet, जो उस वक्त से लेकर अब तक की बात है, कई सदियां बीत गई हैं, feels shorter than the day, कि उस वक्त से लेकर अब तक का जो वक्त है शरा करती है ऐसे जैसे दिन का कुछ हिस्सा गुजरा हो। I first surmised the horses' heads, मैंने फर्स्ट टाइम अंदाजा ये लगाया कि जो घोड़ों के सर थे वो टुवर्ड्स इटर्निटी, वो अब्दियत की तरफ थे। स्टूडेंट्स, इस पॉइंट के अंदर शायरा बताना चाहती है कि मौत जब इंसान को आ जाती है तब वक्त और जगह का तयन नहीं किया जा सकता, और वहाँ पे वक्त और जो जगह है उसको इंसान जो भूल जाता है। इसलिए शायरा कहती है कि सदियाँ बीती हैं, मुझे यही पता चला है कि अभी तक दिन का कुछ हिस्सा गुजरा है। दिस इज द एंड ऑफ द पोएम एंड थैंक यू वेरी मच।